Today we're looking at John Locke. Let me start by saying you cannot underestimate the importance of John Locke. He is probably the most influential thinker whenever one thinks of classical liberalism. और आप जानते ही हैं कि the sort of main paradigm that we see in the West vis-a-vis governments and governance and so on, वो है liberalism, human rights, democratic freedoms, freedom of speech, assembly, association, etc. All of that is basically derived in one way or another from John Locke. Enormously influential person. And he lived in a time which was enormously influential as well, which is mainly the 17th century. 1632 he was born, in 1704 he passed away. और इंग्लैंड की हिस्ट्री के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंचुरी है. I'll tell you why. So he lived through the period of the English Revolution. ये वो दौर है जिसके अंदर इंग्लिश बादशाहत को ओवरथ्रो किया गया. The English king was overthrown. He was educated at Oxford. First he studied the classics and then later he became a doctor. He became the personal physician and later the secretary of Anthony Ashley Cooper, who was the Earl of Shaftesbury, and the Earl of Shaftesbury also became the Chancellor of the Exchequer from 1672 to 74. Locke was his secretary and also became the secretary to the Council of Trade and Plantations and later Commissioner for Trade. So, as I like to say, if you're going to do any job, make sure you have an influential boss. Because if you have an influential boss, उसका secretary है वो भी John Locke बन सकता है. मगर if you don't have an influential boss, फिर कोई फायदा नहीं है. Locke is considered the father of classical liberalism, इसीलिए उसका influence underestimate नहीं किया जा सकता. He made contributions to empiricism. In fact, he's one of the early empiricists. Psychology, utilitarianism, labor theory of property, labor theory of value, quantity theory of money. ये तो सारी चीज़ें आज हम थोड़ी-थोड़ी पढ़ेंगे. And he was also a mercantilist. He supported mercantilist policies that England should make as much money as possible by exporting as much as possible. As a philosopher, he gives the theory of the mind, the idea that at birth the mind was a blank slate, what is called a tabula rasa, which means a tablet which is absolutely clean. There's nothing written on your mind. We are born without innate ideas. We have no idea of time, of space, of distance, of right or wrong, of justice, or any of these things. We don't know. We're nothing. We're just like a piece of plastic, a piece of wax, जिस पे कुछ भी लिखा जा सकता है. Knowledge is determined by experience derived from sense perception. So everything that is written on the mind is written by our experience of this world. In other words, अगर मुझे idea होता है कि भाई सॉकेट में उंगली नहीं देनी या आग में उंगली नहीं डालनी या गर्म चीज़ों को हाथ नहीं लगाना या ठंडी चीज़ों को ज़रा देख के आइसक्रीम को ज़रा ठंडा गर्म करके खाना है, जो भी आइडियाज़ हैं, they're all formed from our experiences. इसीलिए लोग आपको कहते हैं कि widen your experience, widen your experience. जितना experience आपका wide होगा उतनी ज़्यादा आपकी knowledge होगी. So every concept that we have, हर concept, every single concept that you have is basically formed from your experience. तजर्बे से आपके जहन के अंदर ये ideas पैदा हुए. Locke is one of the first of the British empiricists following Francis Bacon. Bacon is older than Locke and Locke is influenced by the philosophy of Bacon. In turn, Locke influenced Voltaire, Hume, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, the Scottish Enlightenment thinkers, the American revolutionaries. मतलब huge influence है उसका, massive footprint है उसका. His ideas are even reflected in the United States Declaration of Independence. So really, very, very big footprint. So this is one of his most important works. This is the two treatises of government in the former. The false principle and foundation of Sir Robert Filmer and his followers are detected and overthrown. The latter is an essay concerning the true original extent and end of civil government. They obviously didn't believe in small titles in those days. इतना लंबा टाइटल है कि इसको पढ़ने के बाद ही बंदा कहता है यार किताब किसी और पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो इसी तरह के लंबे लंबे किस्म के टाइटल्स हुआ करते थे. ये बहुत उसकी इम्पोर्टेंट किताब है, his most influential work. इसका कुछ पस मंज़र ये है कि 1648 के अंदर एक इंग्लैंड के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इनकलाब हुआ जिसमें the king was overthrown, Charles I was overthrown and then he was executed. The execution actually occurred very close to where Locke used to study as a student, but of course as a student he wasn't allowed to go there and watch the execution. But this was, आप इस बात को समझें कि यूरोप के अंदर एक बादशाह को execute करना कोई छोटी बात नहीं थी. उस पीरियड के अंदर इन द 17th सेंचुरी ऐसी चीज़ सुनाई नहीं देती थी आपको medieval पीरियड के अंदर.
जो दूसरा कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ मिसाल के तौर पे, उसके अंदर आप पढ़ते हैं कि मिडीवल पीरियड के अंदर टिरानोसाइड जो है उसको बहुत ही बुरे नुक्ता नज़र से, बड़ी बुरी निगाह से देखा जाता था कि बादशाह को मार दिया. बादशाह वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ डिवाइन फिगर फॉर दिस पीपल इन दैट पीरियड. तो ये बहुत ही शॉकिंग किस्म की बात थी. द पर्सन हु लेड दिस मूवमेंट वाज अ मैन नेम्ड ओलिवर क्रॉमवेल, जो कि जनरल भी था, बाद में फिर लॉर्ड प्रोटेक्टर भी बना एंड सो ऑन. और जिस फोर्स को वो लीड कर रहा था, उसका वो फोर्स बेसिकली थी हाउस ऑफ कॉमन्स की फोर्स. उसकी फ़ौज को वो लीड कर रहा था. हाउस ऑफ कॉमन्स जो है बादशाह ने खुद बनाया था इस मकसद के लिए कि जो नोबल्स वगैरह हैं उनका तो अपना एक हाउस है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, मगर जो और दूसरे लोग हैं, मर्चेंट्स वगैरह हैं, जो कॉमनर्स हैं, उनसे भी मैंने टैक्स बटोरना है, उनसे भी मैंने टैक्स निकालना है. तो उनका भी एक हाउस बनाया गया जिसका नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स. तो ये जो दोनों पार्लियामेंट्स के, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस थे, इनका बेसिक मकसद यही था कि बादशाह ने टैक्स निकालना था. और इनका मकसद लेजिस्लेशन करना या कानून बनाना नहीं था, वो तो बादशाह का काम था ना. मगर अब जब ये हाउसेस बन गए एक दफ़ा, तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर एंड मोर राइट्स. दे स्टार्टेड सेइंग कि भाई हम टैक्सेस भी अदा कर रहे हैं तो हमारी बात भी सुनी जाए. तो इस तरह करके बादशाह और हाउस ऑफ कॉमन्स के दरमियान लड़ाई हुई. ओलिवर क्रॉमवेल लेड द फोर्स एंड डिफीटेड द किंग एंड एग्जीक्यूटेड हिम. 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हुई और स्टुअर्ट जो किंग नोबल फैमिली थी, जो द स्टुअर्ट्स, उनकी रेस्टोरेशन हुई 1660 के अंदर, क्योंकि देयर वाज अ वैक्यूम पैदा हुआ लीडरशिप का वगैरह, तो उसके अंदर ये हुई. और जब बादशाह सलामत वापस आए तो उन्हें क्रॉमवेल के सर को कब्र में से निकाल के एक्ज्यूम करके 30 साल टावर ऑफ लंदन के सामने जो है एक स्पाइक पे रखा कि 30 साल लोग देखते रहे कि ये ओलिवर क्रॉमवेल की खोपड़ी है, हमने उसके साथ ये किया है, जिसने मेरे प्यो की खोपड़ी उतारी थी, मैंने उसके साथ उसकी खोपड़ी जो है यहाँ लगा दी है. ठीक है, दोज वर डिफरेंट टाइम्स बैक देन, राइट. तो लॉक्स टू ट्रीटिस वर अगेंस्ट द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स. ये जो बंदा था ना, किधर गया, रॉबर्ट फिल्मर, सर रॉबर्ट फिल्मर, ये कहता था बादशाह की, किंग्स की डिवाइन राइट्स है एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो जिस तरह के उस ज़माने के मिडीवल थॉट्स वगैरह हुआ करती थी. तो इसके खिलाफ उसने पूरी किताब लिखी थी. एक ही बंदे को उसने रगड़ के रख दिया बुरी तरह से. और अब तो कोई इसको याद भी नहीं रखता कि ये रॉबर्ट फिल्मर के खिलाफ किताब थी. अब लोग वैसे ही लॉक को पढ़ते हैं, इसको भूल ही गए हैं. बट बहरहाल उसमें वेरी क्लियरली उसने इस थियरी को अटैक किया, फिल्मर को अटैक किया और इसकी थियरी को अटैक किया कि बादशाह जो है उसका वो डिवाइन राइट टू रूल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और अगरचे उसने किताब 1688 ग्लोरियस रेवोल्यूशन से पहले लिखी. ग्लोरियस रेवोल्यूशन में ये हुआ कि फिर दोबारा से पार्लियामेंट ने कोशिश, हाउस ऑफ कॉमन्स ने कोशिश की, और फिर कुछ आए बाएँ शाएँ होने के बाद, कुछ झगड़े वगैरह होने के बाद एक अग्रीमेंट तय हुआ. और एग्रीमेंट के तहत ये बात की गई कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो कानून बनाएगा और क्राउन जो है वो भी अपना काम करेगा, जिसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं. बट रियल पावर जो है अब किसके पास होगी? क्राउन के पास नहीं होगी, वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास होगी. आज तक जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के अंदर जो अरेंजमेंट पैदा किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का, वो फिर आज तक मुसलसल चलता रहा. मिसाल तौर पे आज भी इंग्लैंड के अंदर जो रॉयल फैमिली, मिस्टर क्या नाम है उसका, चार्ल्स जो है, वो हेड करते हैं पूरे इंग्लैंड की. ही इज़ द किंग ऑफ इंग्लैंड एक्सेट्रा. तो उससे पहले क्वीन थी इंग्लैंड की. तो दैट दे आर द हेड ऑफ स्टेट, बट दे आर नॉट द हेड ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का हेड कौन है? वो हाउस ऑफ कॉमन से इलेक्ट होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा. तो इस तरह हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के दरमियान डिस्टिंक्शन है. हेड ऑफ स्टेट जो है वो बादशाह या मलका है, वो मोनार्क है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है. हमने भी इसी सिस्टम को अजीबोगरीब तरीके से लगाया हुआ है कि हमने एक प्रेसिडेंट रखा हुआ है जो हेड ऑफ स्टेट है, और हमने एक प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है. ऑफकोर्स जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो कोई बादशाह तो है नहीं. शायद कभी कभार वो समझ ले कि वो बादशाह है, उसकी गलत फहमी होगी, मगर वो बादशाह नहीं. मगर एक्चुअली ये अरेंजमेंट जो है हमने वहाँ से लिया हुआ. ठीक है. तो लॉक ने जब अपनी किताब ये लिखी तो लोगों का ये ख्याल था, जब तक वो छपी वगैरह, तो लोगों का ये ख्याल था कि ये 1688 के रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए लिखी. अगरचे वो थोड़ी सी 1688 से पहले ख़त्म हो चुकी थी, उसने लिख दी थी, फिर रेवोल्यूशन हुआ. मगर बहरहाल जो किताब जब निकली तो उसने उस इनकलाब को, उस रेवोल्यूशन को, ग्लोरियस रेवोल्यूशन को एक तरह से सपोर्ट किया, उसको थियोरेटिकली ग्राउंड किया. उसकी थियरी एक तरह से यही थी, उसकी जस्टिफिकेशन यही थी. सो लॉक ने इस किताब के अंदर ही डेवलप द आइडिया ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, कि हुकूमत जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट. ठीक है, हम आपको कुछ देंगे, टैक्स देंगे, ओबीडियंस देंगे,
ट्रीजन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे, मगर आपने भी हमें कुछ देना है। क्या देना है हमें? हो सकता है वो रोटी कपड़ा मकान हो, वो तहफ़्फ़ुज़ हो, वो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, जो भी है कुछ ना कुछ आपने उसमें देना है। वो क्या आपने देना है वो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम ये करेंगे, आपने ये करना है, आपने हमें ये देना है, ठीक है। और अगर वो हुकूमत वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती, अगर हुकूमत वो चीज़ें नहीं देती जिसका कि उन्होंने वादा किया, तो फिर लॉ की थ्योरी क्लियरली ये कहती है कि यू डू नॉट ओ दैट गवर्नमेंट योर ओबीडियंस, आप उस हुकूमत को ओवरथ्रो कर सकते हैं। सो अगर हुकूमत जो है वो डिवाइन राइट्स की वजह से नहीं बनती बल्कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बनती है, तो जो बादशाह है वो अगर अपने अगर बादशाहत या बादशाह अपना इज नॉट होल्डिंग अप हिज एंड और हर एंड ऑफ द बार्गेन, द रॉयल्टी इज नॉट होल्डिंग अप देयर एंड ऑफ द बार्गेन, तो फिर पब्लिक के पास ये राइट है कि पब्लिक कहे कि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहे तो लिहाजा फारग, ठीक है। तो इट्स एक्चुअली अपने ज़माने की ये बड़ी रेवोल्यूशनरी थ्योरी है। ये अपने ज़माने का एक किस्म का रेवोल्यूशनरी आदमी है, अगरचे आज हम लिबरल्स को ऐसे नहीं देखते कि वो रेवोल्यूशनरीज़ हैं, मगर उस ज़माने के अंदर ये है क्योंकि ये बादशाहत के ख़िलाफ़ है। फिर एक और उसकी किताब है सम कंसिडरेशंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड रेजिंग द वैल्यू ऑफ मनी इन अ लेटर टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगेन छोटा सा टाइटल है, उस ज़माने के टाइटल बहुत ही लंबे होते थे। बहरहाल तो इस किताब में इन कंसिडरेशंस लॉक आर्ग्यूज दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट बिकॉज द फोर्सेस ऑफ मार्केट आर मोर पावरफुल देन दोज ऑफ द लॉ। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी को पे छोड़ दें, आपके इंटरेस्ट रेट मार्केट डिटरमिन करे, कानून नहीं कर सकता, हुकूमत नहीं कर सकती। इसी तरह लॉक अप्लाइज बेसिक नोशंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड टू इलस्ट्रेट दैट द प्राइस ऑफ मनी इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड इन अ मैनर अकिन टू द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। जैसे चीज़ों की अशिया डिमांड और सप्लाई से तय होती है, इसी तरह पैसे को अगर आपने एक तरह से बोरो करना है तो उसका रेट भी जो है वो भी डिमांड और सप्लाई से तय होगा। Making the rate of interest a function of the overall profitability of investment rather than something that can be fixed by law. He argued that the value of money is a function of the quantity of money in circulation. So कई ऐसे ideas जो कि बड़े modern economic ideas हैं, जो कि आप अपनी introduction to economics वाली कोर्स में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहिए आपको, you're supposed to have read। देखो वो कितने पहले जो है डेवलप हो चुके हैं, ऑलमोस्ट इन द 17th सेंचुरी वो डेवलप होते हैं, और उनका वन ऑफ द ग्रेट ऑथर्स टू हैव डेवलप्ड देम इज जॉन लॉक। ले जी अब शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले तो लॉक भाई कहते हैं कि भाई बाइबल मुकद्दस में लिखा है गॉड हैज़ गिवन द अर्थ टू द चिल्ड्रन ऑफ मैन। इसका मतलब ये है कि गॉड हैज़ गिवन द अर्थ टू ऑल ऑफ मैनकाइंड इन कॉमन। ये तो नहीं कि आपको कोई जब आप पैदा हुए थे तो आपके साथ कोई सर्टिफिकेट भी आया था कि ये मेरा हिस्सा होगा ज़मीन का, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सबकी साझी ज़मीन है तमाम इंसानियत की। गिवन इट टू मैनकाइंड इन कॉमन, सो हाउ देन कैन वी हैव प्रॉपर्टी, ही आस्क्स। बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर खुदा ने किसी को पैदा इस तरह से ये सोच के तो नहीं किया, या किसी ठप्पे के साथ या किसी प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन के साथ तो पैदा नहीं किया कि ये फलानी गुलबर्ग के अंदर ज़मीन तुम्हारी होगी और छावनी में ज़मीन तुम्हारी होगी। ये तो हमने खुद किया ना, एक दूसरे में बांटी। तो खुदा ने तो कोई ये प्रॉपर्टी नहीं पैदा की, खुदा ने तो कुदरत को पैदा किया, और खुदा ने इंसान को पैदा किया, और जो तमाम कुदरत है वो तमाम इंसानों की है। दैट्स द वे गॉड मेड द वर्ल्ड। सो देन व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन फॉर प्रॉपर्टी, आस्क्स लॉक। कहता है जी गॉड हैथ ऑल्सो गिवन देम रीजन, यानी ही हैज ऑल्सो गिवन अस रीजन टू मेक यूज ऑफ इट टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ लाइफ एंड कन्वीनियंस। हमें अक्ल की ताकत भी दी है कि हम अक्ल की ताकत को इस्तेमाल करते हुए कुदरत से जो नेमते हैं उनको बेहतर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। The earth and all that is therein is given to men for the support and comfort of their being. हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए ये सब कुछ खुदा ने नेमतें पैदा की हैं ना, ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें। इसका मतलब ये है everything produced by nature belongs to all of humanity, yes, but we can decide amongst ourselves कि हमने कैसे इसको आपस में तकसीम करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है ताकि सबका भला हो इसमें हो और ये बेहतर इस्तेमाल हो। अब ये बड़ी क्लासिकली एक तरह से एरिस्टोटेलियन आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आपको याद होगा एरिस्टोटल भी यही कहता है कि अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लें तो हर बंदा फिर वो अपनी प्रॉपर्टी का ज़्यादा ख्याल रखेगा, ज़्यादा बेहतर उसका ख्याल रखेगा, तो पैदावार बेहतर होगी। तो एरिस्टोटल भी इसी तरह से आर्ग्यूमेंट शुरू करता है, स्टोइक्स वगैरह। तो ही इज़ गिविंग प्रीटी मच अ सिमिलर एक्सप्लेनेशन ऑफ द राइज ऑफ प्रॉपर्टी कि ये हमने खुद तय किया है। क्यों तय किया है कि हम प्रॉपर्टी बनाएंगे? बिकॉज इस तरह से हम बेहतर मैनेज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को
और कुदरत की नेमतों को। अब वो ये कहता है अच्छा ठीक है, मगर देन व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, कैसे प्रॉपर्टी पैदा कैसे होती है? वो कहता है सबसे पहले तो ये कि जब आप पैदा हुए, आप पैदा हुए तो गॉड हैज ऑलरेडी गिवन यू योर बॉडी एंड योर माइंड एंड योर बीइंग इज योर प्रॉपर्टी अलोन एंड नोबडी एल्सेस। ठीक है, गॉड इज गिवन यू विल पावर, फ्री विल, आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद फैसले कर सकते हैं। तो जो आप हैं, यू द सेल्फ इज given to you, is not, you're not given to anybody else, you belong to yourself. So when you take something that belongs to you and you mix it with something that does not belong to you, i.e. nature, यानी जब आप कुदरत के साथ, कुदरत में कुछ जाके काम करते हैं, को मेहनत करते हैं, तो something that is innately your property, by God it was given to you as your property, आप कह लें एक तरह से ये मेरा जिस्म मेरा इख्तियार वाली बात है। और बाय द वे लिबरलिज्म से ही वो प्रिंसिपल निकलता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला, बट वो एक किसी और वक्त बात करेंगे। तो गॉड हैज गिवन यू कंप्लीट propriety over your own self, right? So then this is your first property. You yourself are your first property. You own yourself. ठीक है, that's the first premise of Locke. अब when you mix yourself with something that did not belong to you, i.e. with nature, so some transformation occurs. Locke कहता है yet every man has a property in his own person. This nobody has any right to but himself. तो ये fundamental liberal principle हुआ, जिससे in fact वो वाला principle भी निकलता है, मेरा जिस्म वाला। The labor of his body and the work of his hands, we may say, are properly his. ठीक है, they belong to that particular person and to nobody else by God. Whatsoever then he removes out of the state that nature hath provided and left it in, he hath mixed his labor with and joined to it something that is his own and thereby makes it his property. जब ये औरत कुदरत में अपना लेबर मिलाएगी, तो जिस चीज़ में ये अपना लेबर मिलाएगी, अब वो एक तो खुदा ने वो चीज़ पैदा की और अब उसके अंदर उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लेबर, अपनी कोई चीज़ उसके अंदर मिक्स कर दी। और जब उसने अपनी कोई चीज़ मिक्स कर दी, तो अब वो सिर्फ वो चीज़ नहीं है जो कि खुदा ने बनाई, अब वो चीज़ है जो खुदा ने बनाई और फिर उसके अंदर मैंने कुछ तब्दीली भी की। अब जब ये तब्दीली हुई मेरे लेबर की वजह से, इट बीइंग बाय हिम रिमूव फ्रॉम द कॉमन स्टेट नेचर, अब ये कॉमन स्टेट ऑफ नेचर से निकाल ली गई है, यानी अब ये सबकी नहीं होगी। hath placed it in, it had by his labor something annexed to it that excludes the common right of other men. अब क्योंकि मैंने उस पर काम किया है, जिस चीज़ पे मैंने काम किया है, that should belong to me. ये कागज़ है, ठीक है, जब ये यहाँ पे पड़ा हुआ था तो इसको शायद कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, नो प्रॉब्लम, ये किसी की प्रॉपर्टी एज सच लेट्स अज्यूम नहीं है। मगर एक दफ़ा मैंने उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया है, अब मैंने कुछ अपना उसके अंदर मिक्स कर दिया, अब मेरा उस पर कुछ हक बन जाता है, मैं कहता हूँ यार इस पर मैंने लिखा हुआ है, ये मेरा है, ठीक है। सो दैट ही सेज इज द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लेबर थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी। कहता है कब वो आपकी होती है, जब आप खाते हैं उसको, जब क्या किस वक्त आपकी हो जाती है। कहता है द फर्स्ट गैदरिंग मेक्स द थिंग इनटू प्रॉपर्टी। बस आपने वहाँ से ब्रांच से उतार लिया, वो फल है ज़मीन से निकाल लिया, जो भी आपने कर लिया, पानी जो है पिक्चर में डाल लिया, बस दैट्स इट, फर्स्ट गैदरिंग। एक दफ़ा आपने नेचर से निकाल लिया, अपने हाथ से, अपने लेबर से, अपनी मेहनत से, उसके बाद किसी और का नहीं वो होता, वो आपका उस पर हक बन जाता है। दैट लेबर पुट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम एंड कॉमन, यानी वो चीज़ जो कॉमन है और जिस पे मैंने मेहनत की है, अब वो दोनों अलहदा हो गई, ये मेरी हो गई। दैट एडेड समथिंग टू देम मोर देन नेचर द कॉमन मदर ऑफ ऑल had done, and so they became his private right. तो नेचर ने जो काम किया हुआ था वो तो किया हुआ था, जब तक नेचर ने काम किया था तो वो सबका मुश्तरका हो सकता था, किसी का भी हो सकता था। मगर जब मैंने उस पर काम कर दिया, मैंने वो फल दरख्त से उतार लिया, मैं ऊपर चढ़ा टहनी पे और मैंने फल सेब तोड़ लिया, तो अब इट शुड बिलोंग टू मी एथिकली स्पीकिंग। We see in commons, which remains so by compact, that it is the taking any part of what is common and removing it out of the state of nature leaves it in, which begins the property, without which the common is of no use. So common से जैसे ही आपने एक चीज़ बाहर निकाली, वो आपकी property बन गई। This is Locke's labor theory of property. Property की बुनियाद है, legitimate बुनियाद है labor. अब आप इस सिर्फ इधर तक रहें, सिर्फ इधर तक रहें, इसी से बहुत सारे नताइज रेडिकल किस्म के निकल आते हैं।
जो कि आप सोच नहीं रहे जिनके बारे में। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा नतीजा तो ये निकलता है कि अगर आपने किसी के ज़मीन पर कब्जा किया है, आपने लेबर नहीं किया, लेबर किसी और ने किया उस ज़मीन पे, तो क्या आपकी इलिजिटिमेट प्रॉपर्टी है? इलिजिटिमेट है, वो डाका है, वो चोरी है, ठीक है ना। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपको मिल गई अपने प्यो से, मगर उस पर आप काम ही नहीं कर रहे, तो क्या वो आपकी रहनी चाहिए? लॉक की थ्योरी क्या कहेगी? यू आर नॉट मिक्सिंग योर लेबर इनटू इट, इट डजंट लेजिटिमेटली बिलोंग टू यू एनीमोर। बड़े रेडिकल कंक्लूजन निकलते हैं इस बंदे से। वन डजंट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ अदर्स टू टेक फ्रॉम द कॉमन्स। अब कोई कहे कि जी आपने मुझसे तो नहीं पूछा ये फल लेने से पहले, तो ये आपका फल कैसे हो गया? वो कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्यों नहीं इसकी जरूरत? द लेबर दैट वाज माइन रिमूविंग आउट ऑफ द कॉमन स्टेट दैट दे वर इन हैथ फिक्स्ड माय प्रॉपर्टी इन देम, and his labor hath taken it out of the hands of nature where it was common and belonged equally to all her children and hath hereby appropriated it to himself। तो वो कहता है कि देखो ये कुदरत है, इसमें पानी है, अगर इस बच्चे ने पानी पी लिया तो किसी और के पानी पीने का हक तो नहीं उसने मारा, तो इसलिए इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है तमाम इंसानियत से कि सर मैं पानी पी लूँ या ना पीऊँ। इसी तरह ज़मीन का भी वो एग्जांपल देता है, कहता है ज़मीन इज़ प्लेंटीफुल। अगर कोई बंदा जो है वो खेती बाड़ी करके ज़मीन को आबाद करता है, he doesn't have to take permission, that land doesn't belong to anybody, and he finds this wasteland and then he starts plowing it, etc., and he develops it. So he doesn't have to take permission from anybody because it doesn't belong to anybody, it just belongs to nature. Nobody's worked there. If nobody's worked there, then you can work there and develop it. Can one appropriate as much as one wants? जितनी मर्जी फिर मैं चीज़ें appropriate कर लूँ, जितनी मर्जी ज़मीन मैं ले लूँ कि लेबर मैंने मिक्स करना है तो ज़मीन आ जाए मेरे पास। कहता है नो, द लॉ ऑफ नेचर स्टिपुलेट्स दैट गॉड हैज गिवन अस ऑल थिंग्स रिचली टू एंजॉय। यानी कि जो चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं आप, वो चीज़ें आप ले सकते हैं। इसका मतलब है डू नॉट स्पॉइल, आप स्पॉइल नहीं कर सकते। As much as anyone can make use of to any advantage of life before it spoils, so much he may by his labor fix a property in। यानी जो चीज़ आप नेचर से लेकर इंजॉय कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे लगाई हुई हैं, आप शायद समझ रहे हो कि इसमें बड़ी अच्छी मज़ेदार किस्म की आइसिंग है, मगर ये आइसिंग नहीं है, ये असल में फंगस है, ठीक है ना। इनको नहीं खाना आपने। अगर आपको ऐसे नजर आए ना तो ये ना कहना यमी ये ना कहना, ठीक है, पेट खराब हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि आप इतनी स्ट्रॉबेरी सारी उठा के ले हैं कि देखो मैंने उठा ली सारी स्ट्रॉबेरीज, और इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज जब उठा लेंगे आप खा भी ना सकें और फिर वो सारी स्ट्रॉबेरीज ज़ाया हो जाएं, तो क्या ये भी लेजिटिमेट है? लॉक कहेगा नहीं। है ना दिलचस्प बात? वो कहेगा नहीं, क्योंकि आपने ज़ाया कर दिया है उसको सारे को, और खुदा ने इसलिए नहीं बनाई थी ये चीज़ें कि ज़ाया हो जाएं, खुदा ने इसलिए बनाई थी कि इंजॉय कर सकें। आप उतना ही लें जितना आप इंजॉय कर सकते हैं। Whatever is beyond this is more than his share and belongs to others। कैसा है? आपका सर टेडी पैसा है। इट बिलोंग्स टू अदर्स, यानी कि मैंने अगर लैंड अप्रोप्रिएट कर लिया, मैं उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सक रहा हूँ, उसको प्रोडक्टिव भी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसको वो ज़ाया भी हो रहा है, वो ख़राब भी हो रहा है। मैंने सारा फल इकट्ठा कर लिया, मैं खा भी नहीं सकता हूँ और मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, और वो ख़राब हुई जा रहा है, तो फिर ये इलिजिटिमेट नहीं है। Nothing was made by God for man to spoil or destroy. So if you are by appropriating something from nature, spoiling it or destroying it, then the rest of society, the rest of mankind has a right to say, no, give it back, you're spoiling it. ये भी लॉ कह रहा है। What about property and land? As much land as a man tills, plants, improves, cultivates, and can use the product of, so much is his property। जितना वो अपनी मेहनत करता है, अपने हाथ से टिल करता है, प्लांट करता है, बेहतर करता है, कल्टिवेट करता है, सब कुछ करता है, he by his labor does as it were enclose it from the common। अब ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, जिस ज़मीन पे ये प्रोडक्टिवली काम कर रहा है, ये इसकी है और किसी की नहीं हो सकती। He that in obedience to this command of God subdued, tilled and sowed any part of it, thereby annexed to it something that was his property, which another had no title to, nor could without injury take from him। इसने अपनी मेहनत की है, खून पसीना मिलाया, अपने मिट्टी में अपना खून पसीना एक किया है, तो ये इसकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं हो सकती। No injury to others, as there is plenty of land, just like everybody, nobody is injured when a man drinks from a river। आप कोई और ज़मीन ले ले, आप इसकी ज़मीन नहीं ले सकते क्योंकि ये उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है और आपके पास कोई हक नहीं है। God gave it to the use of the industrious, land की बात कर रहा है कि he gave it to the use to the industrious and rational, not to the fancy or covetousness of the quarrelsome and contentious। ये किसकी बात कर रहा है? ये अपने ज़माने की लैंडलॉर्ड्स की बात कर रहा है।
अपने ज़माने के फ्यूडल लॉर्ड्स की बात कर रहा है। लड़ते फड़ते रहते हैं, कोई काम तो करते नहीं हैं और लेज़ी किस्म के लोग हैं, मोटे हो ही जा रहे हैं, कोई मेहनत तो नहीं करते लैंड पे। तो इनका नहीं होना चाहिए। टू टेक अनदर मैन्स लैंड इज़ द डिज़ायर टू बेनिफिट फ्रॉम अनदर्स पेन, दैट इज़ वर्क। अगर आप किसी इस बंदे की ज़मीन लेते हैं तो इसका मतलब है यू डिज़ायर टू बेनिफिट फ्रॉम अनदर मैन्स वर्क, दैट इज़ इलिजिटिमेट। इट शुड बिलोंग टू द पर्सन हु वर्क्स द लैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द बिगिनिंग देयर वाज नो डिज़ायर ऑफ हैविंग मोर देन मैन नीडेड। एक ज़माने बड़े पुराने में इंसान जब करप्ट नहीं था तो ऐसे था। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ थिंग्स वाज ओनली देयर यूजफुलनेस टू द लाइफ ऑफ मैन। ये उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी। ये या एरिस्टोटल की झलक आपको यहाँ नजर आ रही होगी। He who appropriates land to himself by his labor does not lessen but increase the common stock of mankind. For the provisions serving to the support of human life produced by 1 acre of enclosed and cultivated land are 10 times more than those which are yielded by an acre of land of an equal richness lying waste in common. तो जब ये बंदा यहाँ पे आके खेती बाड़ी करता है, ज़मीन को पर हल चलाता है, पानी पहुँचाता है, तो इस लैंड की एक्चुअली वैल्यू बढ़ जाती है, ये ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है। कुदरत में लैंड जो है, कुछ लैंड थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, कुछ कम प्रोडक्टिव होता है, मगर एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो इज़ वे मोर प्रोडक्टिव देन नेचुरल लैंड। हाउ? बिकॉज जो फार्मर होता है वो वहाँ पे फर्टिलाइज़र भी डालता है, वो खाद भी डालता है, वो हल भी चलाता है, वो सॉइल का ख्याल भी रखता है, वो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखता है, वो उस लैंड को उसमें से बड़ी बूटियाँ शूटियाँ निकालेगा, पत्थर पुत्थर निकालेगा। देखो ये जो सॉइल है, अब ये बड़ी रिच सॉइल है, ये बड़ी न्यूट्रिशियस सॉइल है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त ग्रो करेंगी। तो इसने एक्चुअली लैंड को कंट्रीब्यूट किया है, इसने लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ की है। कैसे की है? कुदरत तो खुद कर सकती है, मगर इसने अपनी मेहनत लगा के उसको इंक्रीज़ की है। और वो ये कहता है कि ये जो मेहनत है किसी फार्मर की, किसी मेहनत कश इंसान की, उस ज़मीन के अंदर, उस ज़मीन को ज़रखेज़ करने के लिए, वो कहते हैं ना मट्टी को सोना बनाने में जो उसकी मेहनत है, यही असल में लैंड की वैल्यू को बढ़ा रही है। और दूसरी तरफ वो कहता है कि इफ़ दे पेरिश इन हिज पोजेशन without their due use, if the fruits rotted or the venison putrefied before he could spend it, he offended against the common law of nature and was liable to be punished. He invaded his neighbor's share, for he had no right further than his use called for any of them, and they might serve to afford him conveniences of life. यानी जिसने ज़मीन को बंजर कर दिया, ज़ाया कर दिया, उसमें मेहनत नहीं की, उसको डेवलप नहीं किया, मगर उसकी वो प्रॉपर्टी है क्योंकि उसने टेक ओवर कर ली किसी हवाले से, तो डज ही स्टिल हैव द राइट टू ओन दैट प्रॉपर्टी? ही सेज नो। उसने स्पॉइल कर दिया ना ज़मीन को, ही डज नॉट हैव द राइट। और रेडिकल कंक्लूजन नजर आ रही हैं आपको, है कि नहीं? अच्छा, अब आगे वो ये कहता है कि लेबर एड्स वैल्यू। ज़मीन के हवाले से तो उसने कह दिया ना आपके सामने कि वो ज़मीन जिस पे लेबर करता है जाके फार्मर, वो ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाती है, वो ज़्यादा वैल्यूबल हो जाती है। For it is labor indeed that put the difference of value on everything. And let anyone consider what the difference is between an acre of land planted with tobacco or sugar, sown with wheat or barley, and an acre of the same land lying in common. आप खुद देखें कि वो ज़मीन जहाँ पे टबैको या शुगर या व्हीट या बार्ले ग्रो करता है, वो कितनी ज़रखेज़ ज़मीन होती है, और वो जो कि वैसे कुदरती ज़मीन होती है जिसमें कभी कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, उन दोनों ज़मीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी में, उनकी फर्टिलिटी में। तो वो कैसे होता है ये फ़र्क? कहता है विदाउट एनी हस्बेंड्री अपॉन इट एंड ही विल फाइंड देन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लेबर मेक्स द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैल्यू। यानी ज़मीन की जो वैल्यू है, किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है, मेनली वो कहता है ये लेबर की वजह से पैदा होती है। कुदरत ने तो एक वैल्यू दे दी, मगर वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, क्या कहता है, 9900 आर होली टू बी पुट ऑन द अकाउंट ऑफ लेबर। 9900 यानी कि 99% जो वैल्यू किसी भी की चीज़ की है वो कुदरत से नहीं डिराइव्ड। वो किससे डिराइव्ड है? उसके अंदर जो इंसानों ने मेहनत की है, उसकी वजह से इसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है, वो चीज़ बेहतर हुई है, वो इस्तेमाल शुदा हो गई है, वो फ़ायदेमंद होगी हमारे लिए। Native Americans have natural resources, but without productive labor they remain poor. कहते हैं वो लैंड को नहीं करते ना, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे ना, वो कहीं कहीं थे भी वैसे,
मगर मेनली तो वो they used to live with their flock etc, right? They were nomadic people, pastoralists etc, right? So he says कि देखो वो ज़मीन को डेवलप ही नहीं कर रहे, प्रोडक्टिवली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अब आप कह सकते हैं कि फिर इस बुनियाद पे जो वाइट फार्मर्स थे जो वहाँ पे गए, उन्होंने कहा ये तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हम इस्तेमाल करेंगे, देखें हम प्रोडक्टिव बनाएंगे ज़मीन को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लेबर थियरी ऑफ वैल्यू इंट्रोड्यूस करता है, कहता है फॉर वट एवर ब्रेड इज मोर वर्थ देन एकॉर्न्स, wine than water, and cloth or silk than leaves, skin or moss, that is wholly owing to labor and industry. जो चीज़ आपके लिए वैल्यूबल बनती है ना, अगर आपको ये लगता है कि ये बड़ी वैल्यूबल चीज़ है, ये बड़ी वैल्यूबल चीज़ है, ये बड़ी वैल्यूबल चीज़ है, ये जो वैल्यू है ना किसी चीज़ की, ये प्योरली इस वजह से है क्योंकि उस पर काम किया गया। The one of these being the food and raiment which unassisted nature furnishes us with, the other provisions which our industry and pains prepare for us, which how much they exceed the other in value, when anyone hath computed, he will then see how much labor makes the far greatest part of the value of things we enjoy in this world. So value of everything जो आप चीज़ें खरीदते हैं, that is basically determined, 99% of that is basically the work that goes into it, जो उस पर मेहनत, जिस चीज़ पे जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। वैल्यू ऑफ लैंड ऑल्सो इंक्रीजेज विद लेबर। और ये मैंने एक 19th सेंचुरी बैंक की तस्वीर लगाई हुई है ताकि आपको पता चले कि 19वीं सदी में बैंकर्स कैसी टोपियाँ पहनते थे, लंबी लंबी किस्म की। कहता है फॉर सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ लॉ दैट शुड हिंडर अ मैन फ्रॉम गिविंग अवे हिज मनी और एस्टेट टू whom he pleases, it will be impossible by any contrivance of law to hinder man skilled in the power they have over their own goods and the ways of conveying them to others to purchase money to be lent them at what rate soever their occasions shall make it necessary for them to have it. In other words, अगर हुकूमत ये कोशिश करे कि किसी तरह इंटरेस्ट रेट को वो रेगुलेट करे, बैंक्स को ये कहे कि आपने 6% पे लोन्स नहीं देने, आपने 4% पे लोन्स देने हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। Banks cannot do this, it's not going to happen, because इनकी स्किल ही है, देखो ना कि जिस तरह से आप किसी इंसान को रोक तो नहीं सकते अगर वो अपनी चीज़ बेचना चाहे। अगर मेरे पास एक फ़ोन और मैं बेचना चाहूँ, गवर्नमेंट आगे कहे नहीं बेचना, तो ये तो ऐसे तो नहीं होगा, वो बेच लेगा जहाँ पर उसका दिल चाहेगा। इसी तरह ये जो लोग हैं, इनके पास जो पैसे हैं, ये अपने पैसे देना चाहते हैं और उन पैसों के एवज़ ये सूद कमाना चाहते हैं, रिबा कमाना चाहते हैं। तो जैसे इनको आप रोक नहीं सकते तिजारत से, इसी तरह आप इनको पैसे की तिजारत से कैसे भी नहीं रोक सकेंगे या उसको रेगुलेट भी नहीं कर सकेंगे। और अगर आप रेगुलेट करने की कोशिश करें, अगर आप इन सबको कहें कि भाई आपका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, 6% पे आप लोगों को दे रहे हैं, 10% पे आप लोगों को दे रहे हैं, ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है, इसको 3% पे लेके आए। गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि 3% पे लेके आए? गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ये हो सकता है कि जब लो इंटरेस्ट रेट होगा, ज़्यादा लोन्स किए जाएंगे, जब ज़्यादा लोन्स किए जाएंगे नई बिजनेसेस स्टार्ट होंगी, इकोनॉमी में जो ना एक मूवमेंट पैदा होगी। तो लॉक कहता है नो सर, दिस कैन नॉट हैपन, ये होना ही नहीं है। क्या होगा? पहली बात तो ये डिफ़िकल्टी ऑफ क्रेडिट विल डिक्रीज ट्रेड। अगर आप उन पर पाबंदी लगाएंगे कि जनाब अली आप जो है इंटरेस्ट रेट गिराएं, तो वो देना ही छोड़ देंगे, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट पे वो कहेंगे मैं क्यों लोन दूं किसी को, मैं क्यों क्रेडिट दूं इतने लो इंटरेस्ट रेट पे, 3% मुझे मिल रहा है, मैं अपने पास ही पैसे रखूंगा। तो ट्रेड कम हो जाएगा तो इसका नुकसान होगा। इट विल हर्ट विडोज एंड ऑर्फन्स, दे विल नॉट बी एबल टू यूज देयर एस्टेट्स वेल। सो व्हाट डज ही मीन बाय व्हिच विडोज एंड ऑर्फन्स इज ही टॉकिंग अबाउट? उस ज़माने में ये होता था कि जो बड़े बड़े एस्टेट्स में अगर मर्द जो है वो मर जाए, तो जो विडो या ऑर्फन था उसका एस्टेट फिर जो है वो जो वालिद का या शौहर का एस्टेट जो है वो उनके पास आ जाता था। मगर बिकॉज दे वर women or they were children, they didn't know or didn't have the social skills at that particular point in time in managing it, so they could often use it by putting it up as collateral in some way and earning interest from that. तो कहता है देखो इनको नुकसान पहुंचेगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। फिर कहता है it will increase advantages of bankers and scriveners, which means brokers. So ये तो बड़े तेज़ तराश किस्म के लोग हैं। जो तेज़ तराश किस्म के लोग हैं वो तरीका निकाल लेंगे आपकी सारी रेगुलेशन को बाईपास करने का, और वो खूब पैसे कमाएंगे। और जो सादा किस्म के लोग हैं वो बेचारे फंस जाएंगे, वो उसी 4% इंटरेस्ट रेट पे जो गवर्नमेंट मैंडेटेड रेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट है उसी पे करेंगे, तो उनको तो नुकसान हो जाएगा। जो पीपल हु नो द ट्रेड वो तो दे विल स्टिल फाइंड अ वे अराउंड इट।
It will increase perjury as ways will be found out to receive money upon other pretenses. ये जो bankers हैं ना, they will give the money and they will pretend it's for something else कि मैं तो commodities खरीद रहा था and आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि किस मकसद के लिए वो लोन था भी कि नहीं था. They will pretend like it's not even a loan. और इस तरह पर्जरी बढ़ जाएगी, यानी lying to the state एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और क्राइम एक तरह की फाइनेंशियल क्राइम जो है बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी. तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है. कहता है there is a natural market driven rate of interest that is determined by demand and supply for money. तो डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी क्या है? सप्लाई ऑफ मनी वो है जो कि बनिया या सूद देने वाला जो है वो कहता है कि मेरे पास पैसे हैं और मैं ये पैसे देने के लिए तैयार हूँ अगर मुझे इस पे सूद मिले, अगर मुझे इस पे रिबा मिले. सॉरी टू यूज सच लोडेड टर्म्स, आई एम ओनली यूजिंग दीज लोडेड टर्म्स ताकि आपके जहन में ये बात जो है नजर बैठे स्ट्रांगली. और डिमांड क्या है उसके लिए? डिमांड ये है कि आपने को बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने को कारोबार शुरू करना है, तो आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको क्रेडिट की ज़रूरत है, या हो सकता है आपको किसी और चीज़ के लिए भी क्रेडिट की ज़रूरत हो, शादी शुदी के लिए, वो भी हो चलता है. मगर यहाँ पे तो मेनली मामला जो है वो यही है कि मर्चेंट्स को पैसे चाहिए, कैपिटलिस्ट को पैसे चाहिए एंड सो ऑन. तो ये है डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी. द नेचुरल इंटरेस्ट ऑफ मनी इज रेज्ड टू वेज. फर्स्ट, when the money of a country is but little in proportion to the debts of the inhabitants, one amongst another, and second, when money is little in proportion to the trade of a country. Debts, एक तरफ ट्रेड है, एक तरफ डेट्स है, एक तरफ मनी सप्लाई है, तो देखना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई का क्या रिलेशनशिप बनता है. कहता है फॉर एग्जाम्पल, इफ इंग्लिशमैन owed in all but 1 million and there were millions of money in England, the money would be well enough proportioned to the debts. But if 2 million were necessary to carry on the trade, there would be 1 million wanting, and the price of money would be raised as it is of any other commodity in a market, where the merchandise will not serve half the customers and there are 2 buyers for 1 seller. In other words, अगर ट्रेड जो है 1 मिलियन से पूरा चल सकता है तो फिर तो मनी जो है वो स्टेबल रहेगा. मगर अगर पूरा ट्रेड इंग्लैंड के अंदर जो हो रहा है उसके लिए आपको 2 मिलियन मनी चाहिए और वो 2 मिलियन नहीं है, तो मनी की वैल्यू क्या होगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी. मनी विल अप्रिशिएट इन वैल्यू. सो ऑलरेडी बिगिनिंग टू सी द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी डेवलप. कहता है इट इज वेन देयरफॉर टू गो अबाउट इफेक्चुअली टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बाय लॉ. इट विल बी अ लॉस टू ऑर्फन्स एंड विडोज. देयर इज नो एडवांटेज टू द स्टेट. पैसे भी नहीं, स्टेट अगर ऑब्वियसली पैसे लोग कम बना रहे हैं, ट्रेड कम हो रहा है, तो फिर स्टेट भी कम टैक्सेस कमाएगा. इट विल एडवांटेज द बोरोइंग मर्चेंट एंड डिस्करेज लेंडिंग. लेंडर जो है वो लेंड ही नहीं करेगा और इसका फ़ायदा नहीं है. देखो कहता है, देखो जी 2 तरीके हैं सिर्फ दुनिया के अंदर कामयाब होने के और ताकतवर होने के और दौलतमंद होने के. एक है कॉन्क्वेस्ट और दूसरा है कॉमर्स. रोमन्स ने कॉन्क्वेस्ट से पूरी दुनिया फतह कर ली और वो बहुत अमीर हो गए. हम कॉन्क्वेस्ट से, यानी इंग्लैंड कॉन्क्वेस्ट से नहीं कर सकता, हम कॉमर्स से कर सकते हैं. दिस इज़ द ओनली वे लेट फॉर द इंग्लिश पीपल. और ये हमारे टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक किस्म का तरीका है, क्योंकि इंग्लैंड के लोग जो हैं बड़े इंडस्ट्रियस हैं. दे लाइक टू वर्क एंड दे लाइक टू बिल्ड. क्रिएटिव लोग हैं. ट्रेड इज़ द वे टू प्रोड्यूस रिचेस. Whatsoever binders the lending of money injures trade, and whatever injures trade therefore injures the economy. So अगर आप रेगुलेट करेंगे इंटरेस्ट रेट को तो उससे ट्रेड जो है वो कम हो जाएगा. जब ट्रेड कम हो जाएगा तो दौलत में कमी आ जाएगी. जब दौलत में कमी आएगी तो आप इंग्लैंड को कमज़ोर करेंगे. Money, he says, is a measure of value. For mankind, having consented to put an imaginary value upon gold and silver, by reason of their durableness, scarcity, and not being very liable to be counterfeited. यानी मनी की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. ये पुराने मनी की हम बात कर रहे हैं, ये नोटों की बात नहीं कर रहे हैं. हम पुराने मनी की बात करें, कॉइन्स की, गोल्ड और सिल्वर की कॉइन्स की. क्या उसकी क्वालिटी है गोल्ड और सिल्वर की? ड्यूरेबल है, ख़राब नहीं होता, स्केर्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉपी नहीं हो सकता. ठीक है. सो बाय जनरल कंसेंट द कॉमन प्लेजेस वेयर बाय मेन आर एश्योर्ड इन एक्सचेंज फॉर देम टू रिसीव इक्वली वैल्यूएबल थिंग्स टू दोज दे पार्टेड विद. यानी जितना मैं गोल्ड, हमने अग्रीमेंट किया, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी सोशल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं इतने तोले सोना दे रहा हूँ इन द शेप ऑफ कॉइन्स, या सोना दे या चांदी दे रहा हूँ इन द शेप ऑफ कॉइन्स, तो उसी के हिसाब से, उसी की वैल्यू के हिसाब से मुझे आगे से कमोडिटीज़ मिलनी चाहिए. अगेन दिस इज एक्सचेंज ऑफ इक्विवेलेंट्स दैट वी स्पोक अबाउट इन अर्लियर lectures. For any quantity of these metals, by which means it comes to pass that the intrinsic value regarded in these metals made the common barter is nothing but the quantity which men give or receive of them. यानी इनकी जो value है वो फिर इनकी quantity से determined है. The quantity of silver that I'm giving will increase or decrease the value, because silver तो वही है, homogeneous किस्म की चीज़ है.
for they having as money no other value but as pledges to procure what one wants or desires, and they procuring what we want or desire only by their quantity. It is evident that the intrinsic value of silver and gold used in commons is nothing but their quantity. So ये currency है, it sounds a bit complicated but it's not complicated at all. जो currency है वो सारी की सारी currency basically weight का measurement है. Pound जो है for example, आप कहते हैं ना how many pounds do you weigh, ठीक है ना, आप स्केल पे जब खड़े होते हैं तो पाउंड्स में अपने आप को मेजर करते हैं. तो वही पाउंड जो है वो सिल्वर का जब 1 पाउंड आप रखते हैं उसी स्केल पे वेट पे, तो वो 1 पाउंड ऑफ सिल्वर हुआ करता था उस जमाने के. तो इसलिए उसका नाम था 1 पाउंड, ठीक है. और फिर उसकी वेट डिनोमिनेशंस थी. तो ये वजह है कि पुरानी करेंसीज जितनी भी हैं उनकी जो डिनोमिनेशंस हैं, उनके जो नाम है और वेट्स के जो नाम है वो एक ही नाम होते हैं, बिकॉज बेसिकली करेंसी को आप वेट करके देखते थे कि उसकी वैल्यू क्या है. अब देखो आगे वो वेलोसिटी ऑफ मनी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप कर जाता है. कहता है द वेरी सेम शिलिंग मे एट वन टाइम पे 20 men इन 20 days. ठीक है, एक शिलिंग है वो 20 लोगों को में सर्कुलेट कर जाता है 20 दिनों में. At another rest in the same hands 100 days together. अब ये मैंने माइजर की तस्वीर लगाई हुई, देखो उसने अपने पैसे यहाँ पे रखे हुए हैं और उस पर वो चढ़ा हुआ कह रहा है मैंने किसी को नहीं देने. ठीक है, तो ये जो पैसे इसके पास पड़े हुए हैं इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो वेलोसिटी इसकी. ये इट्स नॉट चेंजिंग हैंड्स वेरी रैपिडली. ठीक है, कहता है शिलिंग में कोई फर्क नहीं है, वही चीज़ है, बट एक शिलिंग जो है वो बड़ी तेज़ी से ठक 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 करके घूम रहा है और दूसरा जो है वो बैठा हुआ है. अब इन दोनों की आप एवरेज लगा सकते हैं, सब शिलिंग्स की आप एवरेज लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड पे मनी इज चेंजिंग हैंड. दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल एग्जैक्टली टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मनी नीडफुल इन ट्रेड. इससे मसाइल पैदा हो जाते हैं. बट to make some probable guess, we are to consider how much money it is necessary to suppose must rest constantly in each man's hands as requisite to the carrying on of trade. There is a certain, you can estimate कि किसी इकोनॉमी में अगर गिवन लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो उन गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेड के लिए अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इज नेसेसरी एंड नीडेड. एंड यू कैन कैलकुलेट दैट इफ यू नो द वेलोसिटी ऑफ मनी. लो, पूरी क्वांटिटी थियरी मनी यहाँ निकाल दी उसने, है कि नहीं. The measure of the value of money in proportion to anything purchasable by it is the quantity of the ready money we have in comparison with the quantity of that thing and its vent, which means supply, or which amounts to the same thing. The price of any commodity rises or falls by the proportion of the number of buyers and sellers. So you get from here M into that's the money supply, the total amount of money in circulation. The number of coins, let's say, in circulation. The velocity of money will give you the total amount that is of money that is changing hands, into P, which is the price level from where we can measure inflation, into T, which is all transactions, T for transaction. So P is the price level, T is transaction. So total amount of money circulating has to be equal to the total amount of goods circulating, because obviously a good will only circulate when somebody gives money for it. So this side of the equation is just the money side, and this side of the equation is just the good side. Money changing for goods have to be equal to each other. That's the quantity theory of money. The value of money in respect of these depends only on the plenty or scarcity of money in proportion to the plenty and scarcity of those things. यानी कि अगर ये बहुत हाई हो जाए, ये बहुत ज़्यादा हो जाए और ये कम हो, तो वैल्यू ऑफ मनी को क्या होगा, वो गिरनी शुरू हो जाएगी. और अगर ये बहुत कम हो और ये बहुत ज़्यादा हो तो वैल्यू ऑफ मनी को क्या होगा, उसको चढ़ना पड़ेगा, वो चढ़ेगी. सीधी सी बात है, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन हैव टू बैलेंस ईच अदर आउट. इक्वेशन का मतलब ये, ठीक है. ओके, आगे कहते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हैव नो बेयरिंग ऑन द वैल्यू ऑफ मनी इन रिलेशन टू कमोडिटीज. तो ये जो रेगुलेशन आप कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है. इस ट्राइंग से द पर्पस ऑफ मनी इज टू सर्व एन एक्सचेंज. हमने पैसे तो नहीं खाने, पैसे से वो चीज़ खरीदनी है जो हमने इस्तेमाल करनी है. तो सो दैट इन एक्सचेंजिंग कॉइन सिल्वर फॉर एनी अदर कमोडिटी विच इज बाइंग and selling, the same measure governs the proportion you receive, as if you exchanged lead or wheat or any other commodity. That which regulates the price, that is the quantity given for money, which is called buying and selling, for another commodity, which is called bartering, is nothing else but their quantity in proportion to their supply. Okay, so you are buying and selling commodities in exchange for money, expecting to receive equivalents in turn. And that is what is causing, the whole cycle of demand and supply to continue. And that is what determines also in turn the value of money
and in relation to the number of commodities. Again, it's the same idea further elaborated. So what will happen if we devalue or debase the currency? He that will justify estimate the value of anything must consider its quantity in proportion to its supply. For this alone regulates the price. Clear hogi baat? Price is regulated by supply and demand, he is saying. The value of anything compared with itself or with a standing measure is greater as its quantity is less in proportion to its supply. ठीक है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई. अगर वैल्यू बढ़ गई तो उसके साथ जो आपने चीज़ एक्सचेंज करनी है फॉर मनी एक्सेट्रा, उसकी वैल्यू भी बढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज ट्रेड नहीं हो सकेगा. नथिंग कैन रेज और फॉल द वैल्यू ऑफ योर मनी बट द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स प्लेंटी और स्केर्सिटी. पैसे अगर ज़्यादा होंगे तो वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी पैसे की. पैसे अगर मनी सप्लाई अगर कम होगी तो वैल्यू ऑफ मनी विल राइज. ठीक है, मनी सप्लाई डिटर्मिन्स whether inflation or deflation takes place. In proportion to the plenty, scarcity or want supply of any other commodity with which you compare it or for which you would exchange it. In relation to what? Money ऊपर गया या नीचे गया, in relation to what? In relation to commodities. यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ गई है मगर at the same time the quantity of commodities has also gone up. The number of commodities, the number of transactions, etc. has also gone up. So what will happen to the price level? It will remain stable. On the other hand, if money has gone down, but the number of commodities has also gone down, what will happen to the price level? It will remain stable. Price level is, of course, the value of money, how much money is able to buy, sell, etc. What if the money goes up and commodities go down? What will happen to the value of money, you tell me? मनी सप्लाई बढ़ गई है और कमोडिटीज भी गिर गई हैं तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ मनी को बुरी तरह से डिक्रीज करेगी. What happens if the supply of money comes down and the number of commodities increases a lot? There's a very few rupee notes chasing a lot of commodities. What will happen? मनी की वैल्यू तेजी से अप्रिशिएट करेगी. ठीक है, वैल्यू मनी की अप्रिशिएट करेगी. ठीक है ना. अब हम देखते हैं debasing the currency. Debasing the currency is the same as inflation. ठीक है. Debasing means that the value of the currency is falling. The value of the currency now, the same 100 rupee does not fetch as many commodities as it did in the past. So पुराने ज़माने में कैसे होती थी debasing, जिसको आप inflation भी कह सकते हैं, वो ऐसे होती थी कि ये एक सिल्वर कॉइन है, रोमन डिबेसमेंट ऑफ सिल्वर कॉइन्स आप देख रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर एक सर्टन अमाउंट ऑफ चांदी है. ठीक है, फिर वो जो अमाउंट ऑफ चांदी है उसको वो थोड़ा सा ड्रॉप किया उन्होंने, ये 97 से 95 पे आ गया, फिर ये आगे 95, 94.5, 92 पे आ गया, 93 पे आ गया, 94, 93, ये 90 पे आ गया, 88 पे आ गया, 83 पे आ गया, 78 पे आ गया, 73, ओ माय गॉड इधर आगे गिर गया, 55 पे आ गया, 45 पे आ गया, 40 पे, 20 पे, 5 पे, 3 पे. ओ यानी कि ये जो कॉइन है इसमें सिर्फ 3% सिल्वर है. इस कॉइन और इस कॉइन का जब मुकाबला होगा तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि वो तो बड़ा वैल्यूबल कॉइन है क्योंकि उसमें तो वो तो है ही सिल्वर बेसिकली. ये कोई इतना वैल्यूबल कॉइन नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम 3% सिल्वर है सिर्फ. ये बेसिकली है ही और चीज़ का बना हुआ, दूसरे मेटल का. सो दिस इज़ कॉल्ड डिबेसमेंट ऑफ द करेंसी. ये रोमन एम्पायर ने भी किया, थिंकिंग कि इस तरह देखो अगर मैं करेंसी गिरा दूंगा, एम्पायर ने ये सोचा, तो सडनली वील बी रिचर बिकॉज वील हैव मोर मनी. बट ऑफ कोर्स इट डिडंट वर्क दैट वे, because you're not richer by having more or less money. All that happens to the money, the number of commodities is still the same. All that happens is that you're still buying the same amount of commodities, but now with debased money. So the quantity of money has to go up because its value has already gone down in order to trade the same amount of commodities as before. Nothing has changed in terms of productivity of labor and in terms of output of the economy at all. You don't get richer just by printing more money, unless of course your productivity has gone down. Okay. So what will be the, मैंने बात तो सारी समझा दी मगर मैं जल्दी से पढ़ के सुना देता हूँ. What will be the effect of lowering the percentage of silver in a coin? The quantity of silver in each coin is what gives the coin its real and intrinsic value, he says. Hence lowering the silver in each coin will debase and devalue the money. This is called inflation today. It will rob creditors, he says, decrease taxes, ruin stability of trade. Everybody will have to carry scales in their pocket to check कि इसमें कितना silver है, कितना silver नहीं है. More coin will have to be used in international trade. So he says debasing the currency is a very bad thing.
don't do it. Money, he says, is the measure of commerce and of the rate of everything, and therefore ought to be kept, as all other measures, as steady and invariable as may be. Don't mess with don't start clipping coins, don't start debasing the currency, because this is called monetary instability. By the way, what does IMF say is one of its main goals? Monetary stability. Okay? That's why when they go into third world countries, they say, you are an irresponsible person and you, I know, want to print more money to pay all these workers, etc. And that's why we're going to make the State Bank of Pakistan autonomous. That means the Prime Minister of Pakistan cannot tell the State Bank, or the government of Pakistan cannot tell the State Bank of Pakistan, साढ़े कोल पैसे नहीं है, जरा पैसे print करो. We can't say it. Governor will say, no, sorry, हम नहीं print कर रहे और पैसे. दफाओ, taxes से लेके आओ, हम नहीं देंगे पैसे. तो 1995 के अंदर the State Bank of Pakistan became autonomous from the government of Pakistan. तो दूसरी बात ये थी कि उस ज़माने में बायोमेटालिक करेंसी थी ना. बायोमेटालिक का मतलब ये कि गोल्ड के कॉइन्स भी होते थे और सिल्वर के कॉइन्स भी होते थे. तो कहता है गवर्नमेंट का उसका दिल चाहता था कि हम इसका रेट फिक्स कर दें किसी तरह कि इतने इतनी चांदी के कॉइन्स जो हैं विल बी इक्वल टू 1 गोल्ड कॉइन. ठीक है, पर वो कहता है ये हो नहीं सकता. वन कांट फिक्स द वैल्यू बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर. व्हाई? बिकॉज इन सप्लाई एंड डिमांड कीप वेरिंग. कभी गोल्ड ज़्यादा आ जाता है इकोनॉमी के अंदर तो गोल्ड की वैल्यू गिर जाती है. कभी गोल्ड नहीं आता है इकोनॉमी के अंदर तो गोल्ड की वैल्यू चढ़ जाती है. कभी सिल्वर ज़्यादा आ जाता है इकोनॉमी के अंदर तो सिल्वर की वैल्यू गिर जाती है. कभी सिल्वर नहीं आता है इकोनॉमी के अंदर तो सिल्वर की वैल्यू चढ़ जाती है. कभी कमोडिटीज़ बढ़ जाती हैं, कभी कमोडिटीज़ कम हो जाती हैं. सारी चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही होती हैं. तो क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रही हैं तो गोल्ड और सिल्वर का जो आपस का रेट है वो भी आप डिटर्मिन नहीं कर सकते, वो भी आप फिक्स नहीं कर सकते. कुछ ना कुछ होगा जो उसको डिस्टर्ब कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड और सिल्वर का रेट फिक्स कर दें और उसके बाद देयर इज अ सडन इन्फ्लक्स ऑफ गोल्ड इनटू द इकोनॉमी, तो गोल्ड विल डिवैल्यू. गोल्ड जो है वो इतना वैल्यूबल नहीं रहेगा. गोल्ड की एक्चुअल मार्केट रेट गिरना शुरू हो जाएगा. ठीक है, एंड सिल्वर विल बिकम मोर वैल्यूबल. सो नाउ द वैल्यू और प्राइस ऑफ एनीथिंग बीइंग ओनली द रिस्पेक्टिव एस्टिमेट इट बेयर्स टू सम अदर व्हिच इट comes in competition with can only be known by the quantity of the one which will exchange for a certain quantity of the other. There being no two things in nature whose proportion and use does not vary, it is impossible to set a standing regular price between them. Okay? So because this is all basically, there is no absolute standard for anything as far as the economy is concerned. Any attempt to find a standard is a waste of time. कि आप ये कह दें कि जी हर चीज़ का मैं स्टैंडर्ड वीट बना लेता हूँ या मैं ये स्टैंडर्ड बना लेता हूँ, ये नहीं है. एवरीथिंग इज़ रिलेटिव. दिस इज़ वेरी आइंस्टाइन सॉर्ट ऑफ आइडिया. एवरीथिंग इज़ रिलेटिव टू ईच अदर बेसिकली. दैट्स हाउ दे आर बीइंग मेजर्ड. एंड एवरीथिंग इज़ मूविंग लाइक अ फ्लोइंग करंट. एंड दैट्स व्हाई यू कांट फिक्स एनीथिंग. देयर इज़ बेटर टू लीव गोल्ड एंड सिल्वर, let them vary. The market will automatically determine how much silver for how much gold. Let it go. Finally, आप देख सकते हैं कि some very very important and influential ideas have been developed by John Locke. सबसे पहले है लेबर थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी. यानी ये आइडिया कि प्रॉपर्टी की जस्टिफिकेशन ये है कि जब आप उसमें मेहनत करते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है. इसका फ्लिप साइड ये है कि अगर आप उसमें मेहनत नहीं करते तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरी बात ये कि प्रॉपर्टी सिर्फ वहाँ तक मेंटेन कर सकते हैं, लॉक कहता है, जहाँ तक आप उसको एंजॉय और इस्तेमाल कर सकते हैं. जब वो प्रॉपर्टी आपकी है और वो बेकार और ज़ाया हो रही है तो फिर आप जो सोसाइटी है उसके ख़िलाफ़ एक क्राइम कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं. और सोसाइटी को ये हक़ है कि वो ये आपको कहे कि ये आप प्रॉपर्टी ज़ाया कर रहे हैं, ये आप लैंड ज़ाया कर रहे हैं, ये आप फ्रूट ज़ाया कर रहे हैं, ये आप वेजिटेबल ज़ाया कर रहे हैं, जो भी आप ज़ाया कर रहे हैं, अब आपका इस पर हक़ नहीं होना चाहिए. तो ये बड़ी रेडिकल किस्म की बातें हैं जो लॉक ने शायद रियलाइज़ की या नहीं की. इट्स डिफ़िकल्ट टू से, बट इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट लिटिल हार्ड, यू कैन सी that radical conclusions can come out of this, especially against the landed class of his time. क्योंकि लैंडेड क्लास के ख़िलाफ़ एक्यूजिशन ही ये थी कि ये लोग काम तो कोई करते नहीं है, सिर्फ रेंट लेते रहते हैं, रेंट लेते रहते हैं. दूसरी बात ये है कि लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू. अब लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू और लेबर थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या है? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ब्रेक में किसी ने पूछा. फ़र्क ये है कि जो लेबर थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी है वो तो सिर्फ ये बता रही है कि क्या चीज़ आपकी मलकियत हो सकती है, और लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू ये बता रही है कि जो चीज़ आपकी मलकियत है उसकी वैल्यू में इजाफा
किस वजह से होता है? इसी वजह से होता है कि जब आप उसमें मेहनत ज़्यादा करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा वैल्यूबल बनती चली जाती है। इसकी भी बहुत रेडिकल कंक्लूजन्स आगे मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स में निकलेंगी, जब मार्क्स ये कहेगा कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की बुनियाद पे ये साबित करेगा कि इनफैक्ट कैपिटलिज्म एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है। मगर ऑब्वियसली लॉक के जहन में ये बात नहीं थी कि कैपिटलिज्म एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है। उसके जहन में ये बात ज़रूर थी कि फ्यूडलिज्म और लैंडेड क्लास जो है वो गुड फॉर नथिंग एक्सप्लॉयटेटिव किस्म की क्लास है। उसके अलावा ये कि लिमिट्स टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया अब लिबरलिज्म के अंदर एक सेंस में इनबिल्ट है, और वो यही लिमिट है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके पास है जो आप प्रोडक्टिवली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, मिस्टर इलॉन मस्क के पास $200 बिलियन हैं या जितने भी हैं, ठीक है, वो आप प्रोडक्टिवली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो वो ज़ाया हो रहे हैं ना सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मे बी इट्स बेटर कि उन रिसोर्सेज को ऐसे तरीके से इस्तेमाल किया जाए जो कि सोसाइटी के बेनिफिट में हो, बिकॉज आप तो यूज़ ही नहीं कर रहे ना, आप यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट हो रहा है वो। तो दैट विद इन लिबरलिज्म, even within Lockean liberalism, there can be a justification for society to take back private property where that private property is not being productively used and is just being wasted. फिर interest rate वगैरह के हवाले से you can clearly see, he calls it the price of money. There is a debate on whether interest rate should be called the price of money. आप कंफ्यूज लग रहे हैं थोड़े से। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे पैसे बोरो करने हैं तो मुझे उसकी कीमत अदा करनी है। वो जो कीमत मुझे अदा करनी है वो 1 लाख रुपए के कर्जा लेने की, लेट्स से कि वो 10,000 रुपये है, तो वो 10,000 रुपये 1 लाख रुपए की कीमत है, वो उसका सूद है। तो दैट्स हाउ इंटरेस्ट रेट इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज द प्राइस ऑफ मनी. ही refers to it as the price of money. It's Locke that refers to it as that. Many modern economists also refer to it as that. Interest is the price of money, or the price of credit, let's say. So it's from Locke that they take that. So how is it determined? It is determined by the demand and supply of money. Demand of money is कि people who want to go and जो merchants वगैरह हैं, जो trade वगैरह करना चाहते हैं, they will demand credit because they need the money to go and buy things. और supply of money कौन देगा? जिनके पास पैसे हैं और उन पैसों को वो डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, उसमें से सूद कमाना चाहते हैं, they are going to give the supply of money. और ये बेहतर है कि अगर ये मार्केट ही करे, गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी भी इसी पूरी डिबेट में टू से वाइल सेइंग कि इंटरेस्ट रेट शुड बी फ्री, उसी डिबेट में देखें, और उस जीनियस आदमी तो था अपने ज़माने का, उसने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी भी पूरी इलेबरेट कर दी, उसने वेलोसिटी ऑफ मनी का भी पूरा थियरम आपके सामने इलेबरेट कर दिया। नॉट इन द वे दैट वी स्टडी इट टुडे, हम तो उसको अक्सर मैथमेटिक्स की शक्ल में डालते हैं, ठीक है, मगर लफ्ज़ों में उसने एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट बयान किया है जिसको हम फार्मूला में लिख देते हैं, ठीक है। और डिबेसिंग करेंसी, इन्फ्लेशन वगैरह के हवाले से भी उसने बड़ा क्लियर कट और ज़बरदस्त एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रेजेंट करती। सो दैट इज़ जॉन लॉक्स ideas on economics for you in a nutshell.